Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. So today's our lecture is a very short one, and it is about the working of a switch. And in today's lecture we will briefly discuss about how a switch works, and when we will first start our lecture with the basics of a switch, and then we will see through the help of examples how the switch will work. So let's begin our lecture. Firstly, what is a switch? So switch is a layer 2, or you can say is a link layer device. And link layer device means that it contains the first two layers of a OSI model, or you can say a TCP IP based model. So it switch has the physical layer and has the link layer. So a switch is a device which consists of the two layers, the bottom two layers. So it's a link layer operating device, and it has an active role of uh, working on a link layer device. And what does a switch do? So it does store the frames and then forwards the frame. So how does it store the frames? So whenever a frame, or you can say a link layer frame, comes in the input port of any switch, then it will buffer, or you can say it will place that frame into a buffer or a queue. So it will temporarily store that frame, and whenever that frame is available for the switch to be processed, and then it will be processed, and after that it will forward the frame based on the switching forwarding table. So what happens when MAC address or a frame containing a MAC address is been introduced into a switch? So switch does the switch exactly do that it will examine the incoming frame, and then it will examine, the MAC address of the incoming frame, and then after checking in its forwarding table, it will forward that uh, frame onto the appropriate output port. So how does the switch do the switching here? So switch क्या करेगा कि आपके पास जो भी फ्रेम आएगा उसका मैक एड्रेस चेक करके कंपेयर करेगा अपने जो फॉरवर्डिंग टेबल होगा, और देन उस फॉरवर्डिंग टेबल के मुताबिक जो उसकी अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक बनेगी उसके ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, कैसे करेगा वो फिर हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे वो फॉरवर्ड करता है फ्रेम। सो यहाँ पे जस्ट बताने का मकसद ये है कि वो सिलेक्टिवली तौर पे अपना फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा। सिलेक्टिवली यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्विच होता है वो आपके पास ब्रॉडकास्ट करता है फ्रेम्स। वैसे तो जितनी भी जब इसको कोई एंट्री नहीं होती इसके फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर, तब ये ब्रॉडकास्ट करता है। अगर इसके फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर कोई एंट्री होगी तो इसको फॉरवर्ड करेगा सिलेक्टिव तौर पे उस अप्रोप्रिएट लिंक के ऊपर। तो ये जो सिलेक्टिव तौर पर फॉरवर्ड करना है, तो या तो ये एक लिंक के ऊपर भी फॉरवर्ड कर सकता है, या हम लोग बात करें अगर एक पोर्ट पे भी फॉरवर्ड कर सकता है और मल्टीपल पोर्ट्स पे भी कर सकता है। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली फॉरवर्ड का मतलब ये है कि वन और मोर। मोर का मतलब ये है कि सारे जितने भी, अगर सपोज स्विच के 24 पोर्ट्स हैं तो 24 के 24 पोर्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्टिवली का वर्ड सा यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें कुछ सपोज एक पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड करेगा या 5-6 पोर्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड करेगा। तो वो डिटरमाइन किया जाएगा बेस्ड ऑन उसके स्विचिंग टेबल के ऊपर। अगर स्विचिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी देन वो फ्लडिंग करेगा। फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि वो फिर सबके पास पैकेट को भेज देगा। अच्छा, चूँकि होस्ट या जो एंड सिस्टम्स होते हैं उनको तो ये नहीं पता होता कि स्विच कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे अगर आप घर में बैठे हुए हैं या लैब में कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या होगा कि जो भी आपके पास मतलब आपने वायर से कनेक्ट करना है या वायरलेस लिंक से कनेक्ट करना है, तो आपको तो नहीं पता कि कहाँ पे स्विच की लोकेशन कहाँ है और क्या है। तो basically switch is a transparent device like that. It's an invisible device because the host doesn't know about the presence where of the presence or the whereabouts of the switch. So that's why we call it to be a transparent device. And due to its self-learning capability, we will discuss this self-learning capability in the next slide as well.
that it will learns about its neighboring elements, or the uh, how the switch is being connected to which interface. It just learns that because of the flooding and then a reply from the uh, host devices. So switch doesn't need to be configured. Once you just install your switch, it will work on its own, and it will determine its own forwarding table based on the self-learning capability. And how that works, we will discuss this self-learning capability in a while now, and that's why we call it to a plug and play device. So uh, लेट्स अज्यूम एन एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 आपके पास एंड सिस्टम्स हैं, ए बी सी, देन ए बार, बी बार और सी बार. तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि हर किसी का जो इंटरफेस है, जैसे आप देख सकते हैं इंटरफेस नंबर 1 पे सपोज इस स्विच के 6 पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट नंबर 1 या इंटरफेस नंबर 1 पे जो है वो ए स्टेशन कनेक्टेड है. इसी तरह पोर्ट 2 पे बी, 3 पे सी, एंड 4 पे ए बार, 5 पे बी बार एंड 6 पे सी बार, ये कनेक्टेड है. तो इस केस में क्या होगा कि हर जो होस्ट है वो बेसिकली स्विच से किस तरह कनेक्टेड है, वो यूजिंग अ डेडिकेटेड लिंक कनेक्टेड है. देन ये जो ग्रीन कलर का आप यहाँ पे ये एलिमेंट देख रहे हैं, ये बेसिकली इथरनेट को शो कर रहा है, इथरनेट अडॉप्टर को शो कर रहा है कि ये इथरनेट अडॉप्टर है. और इसको शो करने का मकसद कोर्स का हमने डिस्कस किया कि इथरनेट क्या होता है. तो जो होस्ट हैं वो यूजिंग द इथरनेट अडॉप्टर वो कनेक्टेड है यूजिंग एक लिंक, और वो स्विच पे कनेक्टेड है. तो हर जो होस्ट है उसका एक डेडिकेटेड लिंक है टूवर्ड्स द स्विच, और जो भी होस्ट ने ट्रांसमिट करना है तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर सकता है टूवर्ड्स द स्विच. अब स्विच क्या करेगा, स्विच जो भी इनकमिंग पैकेट्स होंगे या इनकमिंग फ्रेम्स, जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कहेंगे, जो इनकमिंग फ्रेम्स होंगे उनको वो अपने पास स्टोर करेगा या बफर करेगा उनको, जो भी उसके पास फ्रेम्स आएंगे, और फिर उसको अपने फॉरवर्डिंग टेबल की बेस के ऊपर आगे फॉरवर्ड करेगा. ठीक. अच्छा, यहाँ पे कोलिजन की अगर बात करें तो हर जो लिंक है उसकी एक अपनी कोलिजन डोमेन है, जैसे वो CSMA CD के अंदर देखा था. तो यहाँ पे 6 कोलिजन डोमेन्स हैं. अगर ओवरऑल बात करें स्विच की, अगर कोलिजन डोमेन की बात करें तो यहाँ पे 6 हैं, और हर स्टेशन की एक अपनी कोलिजन डोमेन है. तो जैसे अब अगर हमने सपोज़ फ्रेम भेजना हो फ्रॉम A to A बार या B to B बार, तो क्या होगा कि वो आपस में साइमल्टेनियसली अपने ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर उनकी कोई कोलिजन नहीं होगी क्योंकि बीच में स्विच मौजूद है. स्विच डिसाइड करेगा किसका फ्रेम किधर उसने भेजना है. अच्छा, स्विच को कैसे पता चलता है कि मैंने कौन सा फ्रेम किसके पास भेजना है, तो वो उसको पता चलता है यूजिंग द स्विच फॉरवर्डिंग टेबल. स्विच फॉरवर्डिंग टेबल कैसे बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं. अच्छा, जैसे इस केस के अंदर कि आपके पास ए जो है वो कनेक्टेड है ऑन पोर्ट 1 ऑफ अ स्विच. अब स्विच को कैसे पता चलेगा कि मेरी पोर्ट 1 पे ए कनेक्टेड है, क्योंकि आपने तो जस्ट स्विच को प्लेस कर दिया और यूज़र को कनेक्ट कर लिया उस पोर्ट से, मगर स्विच को कैसे पता चलेगा, और इसी तरह बाकी इंटरफेस से कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए स्विच का जो होता है फॉरवर्डिंग टेबल या स्विच टेबल बनता है. अच्छा, स्विच टेबल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो वैसे ही है जैसे राउटिंग का या राउटर का जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है या राउटिंग टेबल जो होता है उससे मिलते होता है. इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं जस्ट. वैसे तो राउटिंग टेबल के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं. जो स्विच का फॉरवर्डिंग टेबल होता है उसके अंदर 3 मेन एंट्रीज होती हैं. मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट, मतलब होस्ट ही उससे कनेक्टेड है. देन किस इंटरफेस से उस होस्ट को रीच किया गया है वो इंटरफेस का नंबर, देन उसकी टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प बेसिकली TTL होती है यहाँ पे, वो इस तरह रखी जाती है कितने टाइम तक या कितने हॉप्स तक उस पैकेट को अलाइव रखना है. अच्छा, तो इस केस में क्या होगा कि अब जो स्विचिंग की अंदर जो टेबल बनेगा इसके अंदर ये एंट्रीज कैसे मेंटेन होती हैं.
तो ये कोई राउटिंग प्रोटोकॉल से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्विच का टेबल बनाना है हमने। तो कैसे बनेगा, वो आपके पास स्विचिंग टेबल के थ्रू बनता है। वो कैसे होता है कि स्विच की जो सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है, कि स्विच जो होता है जो भी उसके पास इनकमिंग फ्रेम आएगा वो उससे लर्न करेगा कि रिकॉर्ड, बेसिकली अपने पास रिकॉर्ड करेगा कि ये जो होस्ट है ये इस पोर्ट नंबर या इस इंटरफेस नंबर से रीचेबल है। तो सपोज़ अब इस केस में जैसे देखते हैं हम कि आपके पास सोर्स जो है वो ए है और जो डेस्टिनेशन है वो ए बार है। इनिशियली तौर पे आपका जो स्विच का जो फॉरवर्डिंग टेबल होगा वो एम्प्टी होगा, क्योंकि स्विच को तो नहीं पता कि मेरे पास कौन सा सोर्स और कौन सा डेस्टिनेशन कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन सा होस्ट किधर कनेक्टेड है। तो अब क्या करेगा, पहला काम तो वो ये करेगा कि सोर्स हमारा ए है, तो ए से आपके पास फ्रेम आएगा टुवर्ड्स द स्विच, क्योंकि स्विच से ही वो कनेक्टेड है। तो स्विच क्या करेगा, जो भी उसके पास फ्रेम आया उसका मैक एड्रेस, अब चूँकि इधर मैक एड्रेस किसका होगा, वो ए का होगा, सोर्स वही है। देन किस इंटरफेस नंबर से आया वो, तो ये कौन से इंटरफेस नंबर से आएगा, ये आएगा इंटरफेस नंबर 1 से। ये जो फ्रेम अब आएगा ए से ए बार की तरफ, वो आएगा इंटरफेस नंबर 1 से। वो ये रिकॉर्ड करेगा कि जो होस्ट ए है, दैट इज़ द मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट ए इज़ रीचेबल टू द यूजिंग द इंटरफेस नंबर 1। सो वो यहाँ पे वही चीज़ रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे अब ये फ्रेम आया स्विच के पास, तो स्विच ने अपने पास एंट्री डाली कि जो ये होस्ट ए है ये रीचेबल है ऑन द इंटरफेस 1, ठीक। देन उसका TTL उसने रख दिया इनिशियल पे 60। अच्छा, नेक्स्ट काम क्या करेगा, नेक्स्ट काम वो ये करेगा कि अब उसको तो नहीं पता कि उसने इस फ्रेम को कहाँ पे भेजना है। तो इस केस में वो इस फ्रेम को जो है वो फ्लड कर देगा। फ्लडिंग क्या होगी कि अब उसके पास फ्लडिंग यहाँ पे इस केस में हम लोग इस तरह कहेंगे कि अब कौन से इंटरफेस से ये फ्रेम आया है, वो है इंटरफेस नंबर 1 से। तो इंटरफेस नंबर 1 का तो हमें पता चल गया। अब हमें ये नहीं पता ए बार कहाँ पे है, तो रिमेनिंग जो इंटरफेसेस हैं 2 3 4 5 6 इनके ऊपर वो इस फ्रेम को ब्रॉडकास्ट कर देगा या फ्लड कर देगा। तो उस केस में जिसका अब ये फ्रेम होगा, इस केस में ए बार का फ्रेम है, तो सिर्फ ए बार ही रिप्लाई करेगा कि ये मेरा फ्रेम है। देन जो ही रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे अपने पास वो एंट्री डालेगा ए बार, क्योंकि स्विच के पास आ गया ए बार और इंटरफेस कौन सा है, वो है 4, और देन TTL को जो है वो 60 यहाँ पे डाल देगा। तो इस तरह उसका स्विचिंग टेबल जो है वो बिल्डअप हो जाता है। और ये देखें, स्विच ने तो कोई एल्गोरिदम यहाँ पे नहीं लगाया, स्विच को तो जो जो फ्रेम मिलता जा रहा है उसके मुताबिक रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि स्विच की सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है, जिस वजह से स्विच को हम लोग प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। अच्छा, आज इस पूरे जो डिस्कशन है अगर उसको हम लोग समराइज़ करके, जो स्विच की फ्रेम फॉरवर्डिंग या फिल्टरिंग जो है वो कैसे होती है, तो उसको अगर हम लोग एल्गोरिदम की सूरत में देखना चाहें तो पहला स्टेप ये होता है कि स्विच ने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर जो भी इनकमिंग लिंक के ऊपर, तो पहले स्टेप में स्विच ने ये करना है कि जो भी उसके पास इनकमिंग फ्रेम आएगा उसको वो रिकॉर्ड करेगा। मतलब ये है कि उसका मैक एड्रेस रिकॉर्ड करेगा, और क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, उसका मैक एड्रेस और किस ये इंटरफेस नंबर से वो रीच हुआ है ये वाला मैक एड्रेस, या मतलब किसकी तरफ से ये फ्रेम आया और यूजिंग कौन सा इंटरफेस नंबर वो रिकॉर्ड करेगा। तो दो चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। देन जो भी उसके पास स्विचिंग टेबल अब बनता जा रहा है वो बेसिकली मैक एड्रेस की डेस्टिनेशंस के ऊपर बनता जा रहा है। तो अच्छा, जब वो सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसके पास वो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर वो स्विचिंग टेबल बन गया। अच्छा, अब क्या करेगा, अब या अगर इनिशियल तौर पे जो स्विचिंग टेबल है या फॉरवर्ड टेबल जो है वो तो एम्प्टी होता है, तो वो ये करता है कि जो ही उसके पास उसने जो भी रिकॉर्ड कर लिया, सपोज़ अभी इस केस में क्या था, जो हमारे पास ये इधर था, इधर इनिशियल तौर पे उसके पास कोई एंट्री मौजूद नहीं थी। तो उसने क्या किया कि जो ही उसके पास ये फ्रेम आया उसने पहला काम ये किया कि ये कौन से मुझे मैक एड्रेस का फ्रेम आया और कौन से इंटरफेस का, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब चूंकि उसके पास नेक्स्ट एंट्री नहीं थी, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दी, तो वो नेक्स्ट एंट्री नहीं थी, तो उसने क्या करना था, उसने
अगर एंट्री नहीं मिलती तो उसने फ्लड कर देना है, और अगर एंट्री मिल जाती है तब क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा, अगर तो एंट्री मिल जाती है तो उस केस के अंदर, मतलब जैसे अब ये उसके पास दो एंट्रीज हो गई हैं, तो इस केस के अंदर क्या करेगा, अब उसने, अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम आएगा तो ए बार की तरफ कोई भी फ्रेम आएगा तो वो उसको यूजिंग 4 नंबर इंटरफेस उस पर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर डेस्टिनेशन सेगमेंट का फ्रेम अराइव हो गया तब उसको, मतलब फ्रेम को ड्रॉप या फॉरवर्ड कर देगा। अगर डेस्टिनेशन फाउंड होगी, अगर नहीं आया तो फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अच्छा, और अगर वो मतलब वहाँ पे उसके अंदर कोई एंट्री मौजूद नहीं है तो उसको फ्लड कर देगा। फ्लड कैसे करेगा कि एक्सेप्ट फॉर द इनकमिंग इंटरफेस जहाँ से वो फ्रेम आया, उसके अलावा बाकी सारे इंटरफेसेस के ऊपर वो फ्लड कर भेज देगा पैकेट को। अच्छा, इसको हम लोग ज़रा एग्जाम्पल से देखते हैं। इनिशियली तौर पे हमारे पास ये सोर्स है, और जो सोर्स है वो ए है, और जो डेस्टिनेशन है वो ए बार है। इनिशियली तौर पे हमारे पास जो स्विचिंग टेबल है वो एम्प्टी है। अब क्या होगा, ये देखें, फ्रेम आया आपके पास स्विच के पास, उसने देखा और रिकॉर्ड कर ली कि जो मैक एड्रेस ऑफ ए है वो उसने रिकॉर्ड कर लिया, और इंटरफेस नंबर 1 ये रिकॉर्ड कर ली, दो चीज़ें, और साथ ही लगा दिया। देन उसने ये देखा कि मेरे पास ए बार की तो कोई सच एंट्री नहीं है, तो अब क्या करना है, या ए बार की जो लोकेशन है वो अननोन है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमने फ्लडिंग करनी है। फ्लडिंग कैसे करेंगे, 1 नंबर इंटरफेस के अलावा जहाँ से फ्रेम आया उसके अलावा बाकी सब पे भेज देंगे। तो फ्लड, ये फ्लड हो गया। फ्लड करने के बाद अब क्या होगा, अब फ्रेम किसको मिलेगा, फ्रेम तो सबको मिलेगा। देन हर कोई अपना जो फ्रेम रिसीव हुआ है उसको कंपेयर करेगा विद देयर मैक एड्रेस, तो इस केस में सारे रिजेक्ट कर देंगे सिवाय ए बार के। तो ए बार जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट किसके पास जाएगी, स्विच के पास जाएगी। स्विच से होके फिर स्विच क्या करेगा कि स्विच देखेगा और रिकॉर्ड कर लेगा ए बार की एंट्री, और एंट्री रिकॉर्ड करेगा ए बार का मैक एड्रेस और ए बार की इंटरफेस नंबर 60 ये लगा देगा। तो अब उसको पता चल गई है ए बार की लोकेशन। देन अब क्या करना है, और साथ उसको एक और लोकेशन भी पता है, उसको ए की लोकेशन भी पता है। अब इस केस में स्विच ने क्या करना है, अब ये फ्रेम जो है, जो अब या एक्नॉलेजमेंट जो है जो ए की तरफ जानी, अब वो उसने फ्लड नहीं करनी, उसने जस्ट उसको एक ही लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करना है जो ए का है, और वो यूजिंग द 1 नंबर लिंक। नेक्स्ट टाइम कोई आपके पास फ्रेम आता है इसका ए बार का, तो वो क्या करेगा, कोई भी बी से कोई लिंक आता है, सपोज इस केस में अब नेक्स्ट टाइम जो फ्रेम है वो बी की तरफ से आता है और ए बार पे आता है, तो कि ए बार डेस्टिनेशन है, तो पहला काम क्या करेगा कि वो बी का मैक एड्रेस रिकॉर्ड करेगा, और साथ कौन सा उसका इंटरफेस नंबर है 2 वो रिकॉर्ड करेगा। देन उस फ्रेम को जो बी की तरफ से आया, जाना था उसने ए बार पे, तो अब उसने फ्लड तो नहीं करना क्योंकि उसके पास वो ए बार की एंट्री मौजूद है, वो जस्ट उसको फॉरवर्ड कर देगा ए बार के ऊपर। देन उसकी लोकेशन वो एक्नॉलेजमेंट भी इस तरह चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो, सपोज फ्रेम आए फ्रॉम ए टूवर्ड्स सी, इस केस में क्या होगा कि ए से फिर फ्रेम आया तो उसने देखा ठीक है ए की मेरे पास लोकेशन वो मौजूद है, तो उसने उसको अपने पास अपडेट कर लिया। अच्छा, अब सी की लोकेशन तो उसके पास मौजूद नहीं है। ठीक है। अब क्या करेगा वो, अब वो उसको फिर दोबारा फ्लड करेगा एक्सेप्ट फॉर 1, तो अब फिर दोबारा जो फ्लडिंग होगी वो 2 को भी मिलेगी, 3 को भी मिलेगी, 4 को भी मिलेगी, 5 को भी मिलेगी और 6 को भी मिलेगी, और जो रिप्लाई आएगा वो फिर दोबारा उसकी तरफ से सी की तरफ से आएगा, तो फिर सी की यहाँ पे एंट्री मेंटेन की जाएगी यूजिंग इंटरफेस 3। देन फिर आपके पास वो ए को वापस उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो इस तरह इसके पास बनता जाए, जो जो उसके पास अननोन होता है उसकी वो फ्लडिंग कर देता है। ठीक है। तो ये तो बात थी स्विच की। अगर वो एक जस्ट सिंपल से सबनेट के अंदर मौजूद हो, अगर हम लोग कुछ इस तरह करें कि स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दें, सपोज आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर 5 से 6 लैब्स हैं, उनको आप और हर लैब के अंदर एक स्विच मौजूद है, तो उनको अगर आप कनेक्ट कर दें आपस में, लैब को इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करना हो या बाकी चीज़ें शेयरिंग करनी हो, तो उस दर क्या करेंगे हम लोग, स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे,
तो इस तरह के जो स्विचेस कहलाएंगे वो इंटरकनेक्टिंग स्विचेस कहलाते हैं। स्विचेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कन्फिगरेशन देख रहे हैं। इस केस में अब क्या होगा, अब तो ये है कि आपके पास स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ये 3 सबनेट्स के अंदर मौजूद हैं। देन इन तीनों को जो कनेक्ट किया गया यूजिंग S4। ठीक, अब सपोज जो आपके पास इनिशियल तौर पे तो इन चारों स्विचेस का जो फॉरवर्डिंग टेबल होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक, तो अब क्या होता है, सपोज इनिशियल तौर पे आपके पास S1 का जो स्विचिंग टेबल है उधर क्या होगा कि सपोज आपकी जो पहला फ्रेम आता है वो ए की तरफ से आता है, और ए का जो सोर्स है वो ए होगा, डेस्टिनेशन मैं अज्यूम करता हूँ वो है जी। ठीक है, इस केस में अब क्या होगा कि S1 क्या करेगा, S1 वो ये करेगा कि अपने पास वही रिकॉर्ड करेगा कि ये कौन से इंटरफेस नंबर से आया। ठीक है, ये आया जी सपोज ये मैक एड्रेस ऑफ ए है, ये आया इंटरफेस नंबर 1 से। ठीक, तो ये अपने पास एंट्री डाल लेगा कि इंटरफेस नंबर 1, मेरे इंटरफेस नंबर 1 पे या S1 के 1 पे जो है वो ए मौजूद है। ठीक, उसने अपने पास वही एंट्री डाल ली। अब उसके पास तो क्या कहते हैं जी का एंट्री मौजूद नहीं है। अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि सिवाय इंटरफेस 1 के अलावा बाकी जो उसके कौन से इंटरफेस हैं, बी, सी और ये वाला इंटरफेस, इनके ऊपर वो भेज देगा फ्रेम को। अच्छा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा और इस स्विच को भी मिलेगा। अच्छा, बी और सी तो उस फ्रेम को रिजेक्ट कर देंगे। अब जो ही S4 को मिलेगा, S4 क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा अपने पास, क्या रिकॉर्ड करेगा कि जो S1 है और जो ये A है, S1 का जो A है वो ये इस बेसिकली वो A का इनकमिंग मैक एड्रेस रिकॉर्ड करेगा और उसके इंटरफेस कि S4 अपने पास स्विचिंग टेबल के अंदर एंट्री डालेगा। देन S4 को इस पोर्ट से रिसीव हुआ, अब उसके पास मज़ीद एंट्री तो नहीं है, तो वो फिर दोबारा फ्लड कर देगा। अब वो फ्लड करेगा तो S3 और S2 को मिलेगा, S2 और S3 भी फ्लड कर देंगे नीचे। तो फिर रिप्लाई कहाँ से आएगा, वो आएगा G से। तो S3 अपने पास एंट्री डालेगा कि G इससे रीचेबल है और A जो है वो S4 से रीचेबल है। तो अब वो क्या करेगा कि अपने पास एंट्री डालने के बाद G का जो एक्नॉलेजमेंट होगी वो S4 को भेज देगा। S4 क्या करेगा, वो देखेगा कि ये तो ए की तरफ जानी है, तो ए मुझे कौन से इंटरफेस पे रीचेबल है, वो इस वाले इंटरफेस पे रीचेबल है, तो वो S1 के पास भेज देगा। और S1 क्या करेगा, ये पैकेट डेस्टिनेशन ए की तरफ है तो वो इस इधर भेज देगा। तो इस तरह हमारे पास स्विचिंग बनेगी। इस केस के अंदर जो स्विचिंग टेबल बनेगा नीचे तौर पे एक दफ़ा फ्लडिंग आपके पास S1 पे होगी, दूसरी दफ़ा S4 पे होगी, देन दो दफ़ा फ्लडिंग होने के बाद आपके पास जो फ्रेम होगा वो जी पे पहुंच जाएगा, और फिर जी जो होगा वो सिलेक्टिव सॉरी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और वो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट होगी सिलेक्टिव तौर पे फॉरवर्ड होती होती S1 पे पहुंच जाएगी और ए तक पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। तो एग्जैक्टली उसी तरह होगा कि जिस तरह हमारे पास सेल्फ लर्निंग होती है। ठीक, तो और फिर इस तरह जैसे जैसे जिसका डेस्टिनेशन आता जाएगा या जिसकी तरफ वो पैकेट जाएगा तो उतनी फ्लडिंग होती जाएगी, उतनी नंबर ऑफ फ्लडिंग होती जाएगी, और फिर उस तरह हमारे पास जो स्विचिंग टेबल होता है वो बनता जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये था हमारा रिगार्डिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ ए स्विच। तो अगर हम लोग स्विच को कंपेयर करें विद द राउटर, तो दोनों की सिमिलरिटीज़ कुछ देख लेते हैं और कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो स्विच होता है वो तो वो भी स्टोर और फॉरवर्ड करता है। ठीक है, और राउटर भी जो होता है वो भी स्टोर और फॉरवर्ड करता है। जैसे भी हमने देखा कि जो भी इनकमिंग फ्रेम आता है उसको स्विच होता है पहले स्टोर करता है, देन उसको अपने फॉरवर्डिंग टेबल के मुताबिक फॉरवर्ड करता है। अच्छा, जो स्विच स्टोर करता है बेसिकली वो आपके पास लिंक लेयर का जो फ्रेम होता है या लिंक लेयर का जो हेडर होता है उसको अपने पास स्टोर करके देन उसको लिंक लेयर की जो फ्रेमिंग या जो मैक एड्रेस है उसकी बेस के ऊपर फॉरवर्ड करता है। जबकि राउटर जो होता है वो तो आपके पास एक पूरा राउटिंग एल्गोरिदम की बेस के ऊपर फॉरवर्ड करता है, और वो राउटिंग एल्गोरिदम जो होता है वो कंप्यूट करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन पूरा एक रूट, देन उसके बाद वो उसको आईपी एड्रेसेस और वो सारी चीज़ें बताता है, इंटरफेस नंबर, देन उसके बाद जो राउटर होता है उसको फॉरवर्ड करता है पैकेट को। अच्छा,
तो ये तो था स्टोर और फॉरवर्ड के ऊपर, दोनों स्टोर और फॉरवर्ड करते हैं, मगर स्विच में जो स्टोर और फॉरवर्ड है वो बेस्ड ऑन फ्रेम होता है, और या हम लोग बात करें मैक एड्रेस की बेस के ऊपर, तो जबकि राउटर के ऊपर जो फॉरवर्डिंग होती है वो बेस्ड ऑन द राउटिंग एल्गोरिदम की बेस के ऊपर, जो फॉरवर्डिंग टेबल बनता है उसकी बेस के ऊपर आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर फॉरवर्ड करता है। वो एड्रेस की अगर बात करेंगे तो ये आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर राउटर फॉरवर्ड करता है, जबकि स्विच जो होता है वो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर फॉरवर्ड करता है। अच्छा, दोनों का फॉरवर्डिंग टेबल होता है। फॉरवर्डिंग टेबल की अगर बात करें तो जो स्विच का फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो तो सेल्फ लर्निंग के थ्रू हम लोग बनाते हैं, या फ्लडिंग करके बनाते हैं, या मैक एड्रेसेस को एक रिकॉर्ड करके बनाते हैं, ठीक है। जबकि राउटर का जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो तो फ्लडिंग करके नहीं बनता, वो तो राउटिंग एल्गोरिदम बनाता है और उसके अंदर आईपी एड्रेसेस होते हैं उस फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर। तो ये कुछ इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द स्विच। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आप लोग अपने जो बुक है उसके अंदर प्रैक्टिस करें, उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हैं उनको देख के प्रैक्टिस करें, और इस टॉपिक की आप लोग लाजमी तैयारी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।